قیام پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک ہی خطے میں مل جل کر پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ قائد اعظم یہ بھی کہتے تھے کہ گاندھی کو مسلمانوں کے بارے میں رائے دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ گاندھی اس طریقے سے بھی قائد اعظم کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور الگ پاکستان کی ڈیمانڈ کے اوپر وہ آخر دم تک قائم رہے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حینما رأت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے قیام پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، بہت سے شہیدوں کا خون بہا، بہت سی عزتوں کو تار تار کیا گیا، تب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دنیا کے اوپر یہ خطہ ارضی جسے پاکستان کہا جاتا ہے عطا کیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پاکستان بننے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ایک غیر متزلزل عقیدہ پاکستان کے قیام کے بارے میں قائم رکھا، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ورگلانے کی کوشش کی گئی، ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی کے مابین وہ کون سے بنیادی اختلافات تھے کہ جن کا قائد اعظم نے مقابلہ کیا، اور گاندھی نے کس طرح سے چاپلوسی کے ذریعے سے پیشکش کر کے اور اپنے منافقانہ چالوں کے ذریعے سے قائد اعظم محمد علی جناح کو قیام پاکستان سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ قائد اعظم کا نظریہ بنیادی کیا تھا اور گاندھی کا بنیادی نظریہ کیا تھا۔ گاندھی کا بنیادی نظریہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد متحدہ ہندوستان کا قیام تھا۔ متحدہ ہندوستان سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایک وطن جو ہے وہ بنایا جائے اور اس وطن کے اندر ہی مسلمان بھی رہیں، ہندو بھی رہیں، عیسائی بھی رہیں، سکھ بھی رہیں، اور جتنی بھی مذہبی قومیں اس میں آباد ہیں وہ ایک ہی ہندوستان کے اندر رہیں گی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ایک خطے میں پرامن طریقے سے رہنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، فلہذا مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ایک خطے میں کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ دوسری بات، قائد اعظم محمد علی جناح یہ جانتے تھے ہندو قوم جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اور پرامن طریقے سے رہنے نہیں دے گی، فلہذا قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہندو جو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں ستی کی رسم ہے، ہندوؤں کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، جبکہ مسلمان کیا کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کی قربانی کرتے ہیں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ مخالفانہ عقائد اور اتنے زیادہ مخالفانہ نظریات کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک ہی خطے میں مل جل کر پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے اس ہندوستان کے اندر ایک الگ خطہ ارضی جو مسلمان کے لیے ہو، جس میں مسلمان اللہ کی غلامی میں آزادانہ زندگی گزار سکیں، پاکستان کا مطالبہ
करते हैं। आइए हम अपनी बात को लेकर आगे चलते हैं। किस तरह से गांधी और कायदे आज़म के माबैन मुज़ाकरात होते रहे, वो कौन से नुकात थे जिनको गांधी पेश करते थे और कायदे आज़म किस तरह से उनको रिजेक्ट करते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गांधी का ख्याल ये था, वो ये बावर करवाने की कोशिश करते थे कायदे आज़म को कि कांग्रेस जो है वो तमाम अक़वाम की, हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम कौमों की नुमाइंदा जमात है। वो ये बावर करवाते थे कि कांग्रेस सबकी हमदर्द है और सबके फ़ायदे के लिए सोचती है और मुस्तकबिल में भी कांग्रेस जो है वो सबको फेवर देगी। जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को बड़ी अच्छी तरह भांप चुके थे, क्योंकि उन्होंने एक वक्त जो है वो कांग्रेस में भी गुजारा था। कायदे आज़म ये जानते थे कि कांग्रेस जो है वो तमाम अक़वाम की नहीं बल्कि वो सिर्फ़ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। चुनाचे कायदे आज़म गांधी की इस बात को हरगिज़ तस्लीम नहीं करते थे। नंबर 2, गांधी ये बावर करवाने की कोशिश करते थे खुद के बारे में कि वो तमाम कौमों के नुमाइंदा हैं, यानी वो एक ऐसे लीडर हैं जिनका मजहबी तकसीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मुसलमान के लिए भी वैसा ही सोचते हैं, हिंदू के लिए भी वैसा ही सोचते हैं, सिख के लिए भी वैसा ही सोचते हैं। जबकि कायदे आज़म इस बात को तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थे। कायदे आज़म ये कहते थे कि गांधी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के नुमाइंदा हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के लीडर हैं और वो सिर्फ़ हिंदुओं के लिए सोच सकते हैं। कायदे आज़म ये भी कहते थे कि गांधी को मुसलमानों के बारे में राय देने का हक़ ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि गांधी मुसलमानों के जज्बात को समझ ही नहीं सकते, इसलिए कि गांधी हिंदू हैं, उन्होंने कभी इस्लाम के बारे में वो चीज़ जानी ही नहीं, वो उस फीलिंग्स से गुज़र ही नहीं सकते जो एक मुसलमान की फीलिंग्स होती हैं। चुनाचे कायदे आज़म तो ये कहते थे कि गांधी को मुसलमानों के बारे में या मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में राय देने का भी कोई हक़ नहीं है। जबकि गांधी खुद को तमाम अक़वाम का लीडर कहते हुए ये इजहार करते थे कि वो सब के नुमाइंदा हैं और सब के खैरख्वाह हैं। कायदे आज़म ने आखिर तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। गांधी इस तरीके से भी कायदे आज़म को कायल करने की कोशिश करते थे कि चलें ठीक है, हम आपकी तकसीम की बात मान लेते हैं, लेकिन पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी तो हासिल करें। ये हमारा अंदरूनी मसला है, यानी हिंदुओं और मुसलमानों का, कि उन्होंने अलग अलग रहना है या मिलकर रहना है। तो गांधी कहते थे कि पहले हम मिलकर दोनों फाइट करके अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेते हैं और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हम इसको डिसाइड कर लेंगे। जबकि कायदे आज़म उनकी इस चाल को बड़ी अच्छी तरह भांपते थे और कायदे आज़म का कहना यह था कि अगर अंग्रेज़ों की आज़ादी से पहले मुसलमानों ने अलग वतन हासिल ना किया तो बाद में हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे। और कायदे आज़म इस बात पर डटे रहे कि पहले अलग मुसलमानों के लिए वतन बनेगा और उसके बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी का कुछ फ़ैसला जो है वो होगा। तो गांधी जी इस बात पर भी कायदे आज़म को चकमा नहीं दे सके। उसके बाद गांधी जी ने ये बात भी पेश की कि मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे की वजह से जो अंग्रेज़ हुकूमत का राज है वो तूल पकड़ रहा है। जबकि कायदे आज़म भी इस बात पर ये जवाब देते थे कि ये तूल पकड़ना गांधी की ज़िद की वजह से है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक मिथ है, ये मुमकिन ही नहीं है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है वो कोई पुरअमन रियासत हो। लिहाजा कायदे आज़म ये कहते थे कि गांधी को अपने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और मुसलमानों के लिए एक अलग खित्ता, एक अलग वतन पाकिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए और उनके तस्लीम करते ही अंग्रेज़ राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गांधी ने इस मजहबी तकसीम को इस तरह भी लिया कि कायदे आज़म को ये कहने की कोशिश की कि देखिए, बज़ाहिर हम सब एक कौम हैं, इस लिहाज से कि हम सब जो हैं वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, चाहे कोई हिंदू है और चाहे कोई सिख है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदू है,
फलिहाजा ये जो मजहबी तकसीम हमें नज़र आ रही है या ये जो मजहबी मुनाफरत हमें नज़र आ रही है, ये अंग्रेज़ राज की वजह से है, क्योंकि हमारा हुक्मरान इस वक्त अंग्रेज़ है और हम सब एक नहीं हो पा रहे। जिस तरह ही अंग्रेज़ का राज ख़त्म होगा, तो गांधी जी का कहना यह था कि अंग्रेज़ राज के ख़त्म होते ही हम सब एक हो जाएंगे, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को बड़ी अच्छी तरह भांपते थे कि हम सब एक नहीं हैं, क्योंकि कायदे आज़म ये जानते थे कि कौम जो है वो किसी खित्ता अर्ज़ी में पैदा होने की वजह से कौम नहीं बनती, बल्कि कौम मज़हब की बुनियाद के ऊपर बनती है। और कायदे आज़म मुसलमानों को इस्लामी दीन, इस्लामी मज़हब की वजह से एक अलग कौम तस्वुर करते थे और अलग पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर वो आखिर दम तक कायम रहे। गांधी ने कायदे आज़म को ये समझाने की भी कोशिश की कि मज़हब तब्दील करने से कोई अलग कौम नहीं बन जाता। उन्होंने हमदर्दाना लहजे में कायदे आज़म को ये बात बावर करवाई कि फिर क्या हुआ अगर मुसलमानों ने अपना मज़हब तब्दील कर लिया है। बुनियादी तौर पर तो पीछे से इनके आबाओ अजदाद जो हैं वो किसी न किसी लड़ी में हिंदू ही थे, या ये पैदा तो हिंदुस्तान में ही हुए, तो अगर मज़हब तब्दील कर भी लिया तो कोई ऐसी बात नहीं, हिंदू इसको कबूल करते हैं और उनको अपना भाई ही समझते हैं। लेकिन कायदे आज़म गांधी की इस बात से भी मुत्तफिक नहीं थे और वो इस चकमे में भी नहीं आए। गांधी ने यह भी कहा कायदे आज़म को कि अगर अलग अलग रियासतें मज़हब की बुनियाद के ऊपर कायम की जाएंगी तो ये दोनों रियासतें हमेशा आपस में जंग करती रहेंगी, लिहाजा बेहतर यही है कि इनको इकट्ठा रखा जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि कैसी अजीब बात है कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर दो रियासतें जब बने तो वो तो आपस में जंग करें, लेकिन अलग अलग मज़हब में बटे हुए लोग जब एक खित्ते में आपस में रहेंगे तो क्या वो आपस में जंग नहीं करेंगे। यानी कायदे आज़म का नज़रिया ये था कि जब मज़हब की बुनियाद पर दो अलग रियासतें वजूद में आ जाएंगी, दो अलग रियासतें कायम हो जाएंगी, तो इनका आपस में जंग करना मुश्किल होगा और ये पुरअमन तरीके से रहेंगी। जबकि अगर इनको इकट्ठा रखा जाएगा तो ये हर वक्त मजहबी मुनाफरत की वजह से एक दूसरे से दस्तो गिरेबां रहेंगी। गांधी जी का यह भी कहना था कि मुसलमान अगर अपना अलग वतन हासिल कर भी लेते हैं तो मुसलमान जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसके मुकाबले में अगर मुसलमान मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मिलकर रहते हैं तो ये दोनों कौमें मिलकर एक बहुत बड़ी पावर बनेंगी और ये ज़्यादा तरक्की कर सकती हैं। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी इस बात को भी तस्लीम नहीं करते और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें और वो दुनिया को मनवा सकें कि वो भी एक कौम है और वो एक बासलाहियत कौम है। कायदे आज़म का कहना यह था कि अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो हिंदू इतनी अक्सरियत में है कि मुसलमानों की मेहनत जो है वो जाहिर ही नहीं होगी, मुसलमानों की मेहनत जो है वो किसी को नजर ही नहीं आएगी। हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत पाई जाती है और जिस तरह वो मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं, वो कभी भी मुसलमानों को मौका ही नहीं देंगे कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करके सामने आ सकें। मुसलमानों को हमेशा दबा के रखा जाएगा और मुसलमानों को वसाइल के अंदर हमेशा तंगी से जो है वो पेश आया जाएगा। चुनांचे कायदे आज़म इस बात को मानते और कहते थे कि अगर मुसलमान अपनी सलाहियतें दिखाना चाहते हैं, अगर मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं, अगर मुसलमान दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुसलमानों को एक अलग रियासत जो है वो हमें देना पड़ेगी और ये उनका हक है, तभी मुसलमान अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया में के सामने मनवा सकेंगे। असल में गांधी किसी भी तरह से पाकिस्तान के क़याम को रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो अलग रियासत कायम करें, वो कभी नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है वो ताकत में आए। बुनियादी तौर पर पसे पर्दा अज़ाइम यही थे कि वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते थे, जिसकी तरफ कायदे आज़म गाहे बगाहे इशारा करते चले जाते थे कि अंग्रेज़ हुकूमत के जाने के बाद अगर हम इकट्ठे रहे तो हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे। चुनांचे गांधी बहुत सी चालें चलते रहे और एक बहुत ही पावरफुल चाल जो गांधी ने चली, जिसमें वहाँ के बहुत से मुसलमान जो हैं वो बेचारे नादानी की वजह से उसकी इस चाल का
शिकार भी हो गए, और वो क्या थी? वो थी एक सेकुलर स्टेट। गांधी का कहना यह था कि हम मजहब की बुनियाद के ऊपर रियासत कायम नहीं करेंगे, बल्कि हम सेकुलर स्टेट कायम करेंगे। सेकुलर स्टेट का माना क्या? कि रियासत का कानून जो है वो सब के लिए बराबर होगा और हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी होगी। वो जो इकबाल ने भी कहा था कि मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। चुनांचे गांधी ने इसी फार्मूले को अप्लाई किया, क्या कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की, कुर्बानी की इजाज़त होगी, लिहाजा मुसलमानों को अलग रियासत या अलग खित्ता अर्ज़ी की ज़रूरत ही क्या है? जब उनको यहाँ पर रहते हुए मजहबी आज़ादी मिलेगी तो फिर क्यों ना एक हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर रियासत जो है वो कायम कर ली जाए। जबकि कायदे आज़म इस बात को हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे। कायदे आज़म कहते थे कि रियासत कभी भी कौम की बुनियाद के ऊपर नहीं बनती, या यूं कह लीजिए कि कायदे आज़म का मानना यह था कि कौम की बुनियाद के ऊपर बनाई जाने वाली रियासत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उसमें लाजमन किसी एक कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, किसी एक कौम का इस्तेहसाल किया जाएगा। कायदे आज़म का कहना यह था कि रियासत मजहब की बुनियाद के ऊपर बनती है, रियासत जो है वो दीन की बुनियाद के ऊपर बनती है। चुनांचे कायदे आज़म ने रियासत जो पाकिस्तानी रियासत है उसको इस्लाम दीन, इस्लाम मजहब की बुनियाद के ऊपर कायम करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा। गांधी जी ने एक और बहुत ही पावरफुल वार जो है वो किया, क्योंकि गांधी पाकिस्तान के क़याम को रोकने के लिए अनथक कोशिश कर रहे थे। चुनांचे एक पत्ता उन्होंने ये भी फेंका। पहली बात तो ये है, उनका कहना था कि पाकिस्तान का अलग से क़याम वो किसी सूरत नहीं माना जाएगा, वो मुमकिन ही नहीं है उनके कहने के मुताबिक। लेकिन ये भी उन्होंने एक नरमी वाला पहलू कि शायद के कायदे आज़म अपने इस अक़ीदे से और क़याम पाकिस्तान के इस पुख्ता इरादे से कुछ थोड़े से नरम पड़ जाएं, लेकिन कायदे आज़म का कमाल यही था कि उन्होंने अपने इस पुख्ता इरादे से एक लम्हे के लिए भी पहलूतही इख्तियार नहीं की, एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक लम्हे के लिए भी वो पाकिस्तान के क़याम के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे, उससे वो पीछे नहीं हटे। गांधी जी का कहना यह था कि पाकिस्तान जो है अव्वल तो वो बनेगा नहीं, लेकिन अगर चलो आप कहते भी हैं कि पाकिस्तान बनाना है तो फिर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की एक नीम रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। यानी पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अलग ही होगा, लेकिन उसके बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जो उनको हासिल नहीं होंगे। मसलन वो अपनी फ़ौज नहीं बना सकेगा, वो अपनी जो है खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा, इस तरह की और बहुत सी बातें। यानी असल जो है वो हिंदुस्तान ही होगा, लेकिन उसमें एक छोटी नीम रियासत जो है वो पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया जाएगा। तो ये भी एक ग़ुलामी को तस्लीम करने वाली ही बात थी। यानी पाकिस्तान जब अपने बारे में आज़ादाना फैसले नहीं कर सकेगा, जब पाकिस्तान अपने दिफा के लिए फ़ौज कायम नहीं कर सकेगा, जब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी खुद नहीं बना सकेगा, तो फिर ये आज़ादी कैसी? कायदे आज़म ये कहते थे कि मुसलमानों को नीम रियासत नहीं बल्कि मुसलमानों को मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत चाहिए, जिसमें वो अपनी खारजा पॉलिसी, अपनी दाखिला पॉलिसी, अपनी मुआशी पॉलिसी, अपने फ़ौजी निज़ाम, अपना अदालती निज़ाम, अपना तमाम सिस्टम जो है वो मुसलमान खुद से जो है वो डेवलप करें और मुसलमान जो है वो दुनिया को दिखा सकें कि हम अपना एक कौमी निज़ाम, हम अपना एक नज़रिया हयात रखते हैं। चुनांचे इस तरह के बहुत से झांसे देने की कायदे आज़म को कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म साबित कदम रहे और फिर बिला आखिर कायदे आज़म और मुसलमानों की इन काविशों के नतीजे में दुनिया ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का वजूद दुनिया में कायम होता हुआ देखा।